وعدہ۔ وہ تینوں کینٹین میں آ کر بیٹھے تو سبحان کی نظر دائیں جانب والے میز پر گئی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہاں ثنا، وقاص اور ارقم بیٹھے تھے۔ علینا کلاس آف ہوتے ہی چلی گئی تھی۔ سبحان نے ارقم کو غور سے دیکھا۔ اسے وہ جانا پہچانا لگا۔ رودابہ نے سبحان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے منہ موڑ کر کینٹین کی کچن کی طرف دیکھا، پھر اونچی آواز میں بولی، رحیم بابا، آج سب کو میری طرف سے ٹریٹ ہے۔ ابھی جو بھی کینٹین میں موجود ہے ان کا لنچ میری طرف سے، کیونکہ کچھ لوگ یہاں کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ٹریٹ ہے۔ اس نے آخری بات ثنا کو دیکھ کر کہی۔ ثنا نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا، پھر ارقم کو کچھ کہہ کر آنکھ ماری اور اٹھ گئی، جسے اسد اور سبحان نے دیکھ لیا اور دونوں ہی مسکرائے۔ رحیم بابا، آج ٹریٹ ملی ہے تو کیوں نہ آج کا مینیو بڑھا دیا جائے؟ ثنا نے رحیم بابا سے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب بیٹی؟ وہ اس کی بات کو سمجھے نہیں۔ ارے بابا، رودابہ کا دل بہت بڑا ہے، آپ ٹریٹ میں جو ٹرے وہ کہہ کر گئی ہے اسے ڈبل کر دو، اس نے سمجھایا، لیکن وہ سیدھے سادے آدمی تھے، نہ سمجھے۔ ڈبل؟ جی ڈبل، جیسے 2 سموسے اس نے کہے آپ 4 کر دو، 1 کوک، بریانی کی 1 پلیٹ، 1 پلیٹ کی کباب کی، 1 کلب سینڈوچ اور 1 منی برگر، اور سب کو یہی ٹرے دیں اور بل رودابہ کو دے دیجیے گا، اس نے مسکرا کر وضاحت کی۔ لیکن بیٹی پیسہ؟ وہ ہچکچائے۔ ارے رحیم بابا، ان امیروں کے پاس بہت ہوتا ہے، آپ بس بنا دو جلدی سے۔ ثنا نے ان کو بتاتے ہوئے رودابہ کی طرف دیکھا، جس کا دھیان سبحان کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، وہ مڑ گئی۔ ثنا ان کے ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگی تو رودابہ نے اسے روک لیا۔ 1 منٹ مس چیریٹی۔ ثنا رک گئی۔ تم نے کیا آرڈر کیا ہے؟ ویسے میں نے 1 ٹرے ایز اے ٹریٹ دینے کا کہا ہے، رودابہ نے مسکرا کر اسے جتایا۔ تھینکس رودابہ، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ سجائی، جس پر اسد نے بامشکل اپنا کہکا روکا۔ تم کتنے مہمان نواز ہو، آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا گیا۔ تمہارا دل کتنا بڑا ہے، ہاتھ سے بھرا کر کے مینشن کیا۔ لیکن کیا ہے نا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، سوری۔ بیچارگی تو کوئی دیکھتا اس کی۔ میں نے اپنے پیسوں سے کھا لیا، تم لیٹ ہو گئی، اور ہاں تھینکس فور دی ٹریٹ۔ خیر میں چلتی ہوں۔ ممنون نظروں سے جن میں شرارت بھری تھی پلکیں جھپکاتے ہوئے وہ کسی کا دھیان اپنی طرف کر گئی اور وہ اپنے ٹیبل تک گئی اور بیگ اٹھایا۔ تمہارا کام ہو گیا؟ وقاص اور ارقم نے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ ارقم کو دیکھ کر سبحان پھر سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ وہ باہر کی جانب بڑھنے لگے، تبھی وقاص کے پاپا کی کال آنے لگی۔ پاپا کی کال۔ وہ فون اٹھانے ہی لگا کہ فون ہاتھ سے پھسل گیا، جس پر ثنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ جو پانی پینے لگا تھا ہنسی پر بے اختیار چونکا۔ اس ہنسی کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ ہنسی اس کے کانوں میں آج بھی گونجتی تھی۔ اس کی تو بد دعا لگی تھی اس کے موبائل کو۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو کر مڑا۔ اب اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے اس دن اشارے سے سوری کہا تھا۔ اس بار وہ کھل کر مسکرایا اور دل میں سوچا، واقعی میں جب بھی ملا ہوں دبنگ ثنا سے کچھ نہ کچھ گرا ہی ہے۔ وہ اس راستے کو تک رہا تھا جہاں سے وہ کب کی جا چکی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو یونیورسٹی جاتے بھی مہینے ہو گئے۔ وہ کافی حد تک دوبارہ پاکستان میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ رودابہ آج بھی اس کو نیچا دکھانے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتی تھی، لیکن وہ بھی دبنگ ثنا تھی، اپنا بدلہ لے ہی لیتی تھی۔ ابھی وہ ارقم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کوئی ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور وہ دونوں ایسے بیٹھے تھے جیسے دوپہر ہو۔ رابعہ بیگم اور رضا صاحب کب کے سونے جا چکے تھے۔ شیزا بھی دانیال کو سلانے گئی ہوئی تھی۔ کمو؟ وہ اسکرین پر نظریں جمائے بولی۔ وہ مووی میں مگن تھا۔ اگر یہ جن ابھی تمہارے سامنے آ جائے تو؟ اس نے چپس منہ میں ڈالا۔ چڑیل تو پہلے ہی میرے ساتھ بیٹھی ہے، یہ بھی آ جائے کوئی بات نہیں، دوسری سائڈ پر بٹھا لوں گا۔ اس نے بھی نظریں سکرین پر جمائے چپس منہ میں ڈالا۔ ثنا نے غصے سے گھور کر پشن اس کو مارا۔ بہت بدتمیز ہو تم، کہاں سے لگتی ہوں میں تمہیں چڑیل؟ ثنا نے غصے سے چپس کا بول اپنے طرف کر لیا۔
लगने की क्या बात है, तुम चुड़ैल हो, वो उसे तंग करते हुए बोला। सना कुशन उठाकर उसको मारने लगी। कितना लड़ते हो तुम दोनों। आवाज पर दोनों चौंक कर मुड़े। ब्लू जीन्स में ब्लैक शर्ट पहने, कंधे पर बैग डाले, हाथों में गिफ्ट बैग और फूल पकड़े वो फ्रेश फ्रेश सा खड़ा था। आज भी वो वैसा ही था जैसे सना ने 7 साल पहले देखा था, हैंडसम। अरसल भाई। दोनों फौरन खड़े हुए। उसने सामान टेबल पर रखा और उनकी तरफ बढ़ा। अरकम भागकर उसके गले लग गया। भाई, कैसे हैं आप? आई मिस यू। मैं बिल्कुल ठीक। फिर वो सना की तरफ बढ़ा। सना भी उसके गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। कैसी हो गुड़िया? माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई हो। वो उससे मिलकर अलग हुई तो अरकम बोला, जी बस कद में ही बड़ी हुई है, अकल तो अभी भी वैसी ही है। उसकी बात पर सना ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। सल्लू भाई, ये तो फजूल ही बोलता रहता है। आप बताएं कैसे हैं? इस दफा तो आप बहुत अरसे बाद आए हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दफा पक्का पक्का यहाँ ट्रांसफर होना था, इसलिए काम ज्यादा था। अरसल ने उसको मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा। उसने गिफ्ट और फूल की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे। चले सल्लू भाई, आप रेस्ट करें जाकर, थक गए होंगे। उन अंकल आंटी से तो आप सुबह ही मिलेंगे। मैं भी चलती हूँ अब। वो जाने के लिए खड़ी हो गई। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज सन। वो अरसल की तरफ मुड़ा। आए अरसल भाई, हम फिल्म देखते हैं, वो चहक कर बोला और लैपटॉप उठाने लगा। तभी सना दांत पीसते हुए बोली, अरकम जरा मुझे घर तक तो छोड़ दो, इतनी रात हो गई है। अकेले कैसे जाऊंगी? वो उसे घूर रही थी और वो समझ नहीं रहा था। ये साथ तुम्हारा घर है, चली जाओ। अब की बार उसने सना को देखा तो वो उसे घूर का इशारा कर रही थी। नाचार उसे उठना पड़ा। ओके, अल्लाह हाफिज सलू भाई, कल मुलाकात होगी। सना ने मुस्कुराकर बाय कहा और अरकम के साथ बाहर निकल गई। अल्लाह हाफिज। वो दोनों जैसे ही घर से बाहर निकले, सना ने मुड़कर अरम को मुक्का मारा। आह! वो दर्द से चीख उठा। ये क्या था? तुम पागल तो नहीं हो, जंगली कहीं की? क्यों मारा है मुझे? वो कराहते हुए बोला। दिल तो मेरा कर रहा है एक और लगाऊं। खुद तो यहाँ बोलने की हिम्मत है नहीं, दूसरों की खुशियों को भी खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या मतलब? उसने हैरानगी से उसे देखा। अरे बेअकल इंसान, अरसल भाई ने शिजा आपी को सरप्राइज देना था। वो गिफ्ट उनका ही था। शिजा आपी की बर्थडे है और तुम क्या कह रहे थे? आए अरसल भाई, हम फिल्म देखते हैं। आखिरी बात पर उसने उसी के अंदाज में मुंह चढ़ाते हुए कहा। हाँ, तो मुझे नहीं पता था। अब पता चल गया ना, अब जाओ, जाकर सो जाओ। सना ने घर का दरवाजा बंद करते हुए कहा। बदतमीज, वो मुंह बनाकर बोला। हाँ हाँ पता है, अब जाओ, वो अंदर से बोली तो वो अपना सर झटकता रजा हाउस की तरफ बढ़ गया। एक हाथ में गिफ्ट और फूल पकड़े, दूसरे हाथ से उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बगैर आवाज किए कमरे में आया। मुड़कर दरवाजा बंद किया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। उसने बैग सोफे पर रखा और बाकी सामान टेबल पर रखकर बेड की तरफ बढ़ा। बेड के किनारे पर दानियल सो रहा था। उसके साथ चेहरे पर ढेरों मासूमियत लिए शिजा सो रही थी। उसका एक हाथ दानियाल के ऊपर था और दूसरा होल्ड करके चेहरे के नीचे था। अरसल ने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा, फिर बाएं जानिब बेड पर बैठकर शिजा का हाथ पकड़ा जो दानियाल के ऊपर था। उसके कान पर झुककर बोला, हैप्पी बर्थडे माय लव। शिजा ने झट से आंखें खोली। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर आंखों में बेयकीनी उभरी कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं। लेकिन जब अरसल ने झुककर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे तो उसको होश आया। वो फौरन उठी। अरसल, उसने उसका चेहरा छुआ। 10 महीने बाद वो उसे देख रही थी। हैप्पी बर्थडे शिजा। उसने उसे अपने साथ लगाया। शिजा ने भी मजबूती से अरसल के गिर्द बाजू लपेट लिए। उसकी आंखें नम थी। मैं आपको बहुत याद करती हूँ अरसल, वो रोते हुए बोली। अरसल ने उसके आंसू साफ किए और फिर बोला, अच्छा बस रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ ना। और ये लो, उसने फूल और गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू सो मच। उसने मुस्कुराकर दोनों चीजें थाम ली। फूलों की खुशबू को अपने अंदर उतार कर उन्हें साइड टेबल पर रखा और फिर गिफ्ट खोला।
वो गोल्ड का बहुत ही नाजुक और खूबसूरत सेट था। ये बहुत खूबसूरत है अरसल, थैंक यू, वो मुस्कुरा कर बोली। चलो अब सो जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। वो घूमकर दानियाल की तरफ गया और उसको आहिस्ता से प्यार करके चेंज करने चला गया। वापस आकर लाइट हल्की की और अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसके लेटते ही शीजा ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। वो मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। और जनाब, कैसी जा रही है पढ़ाई? वो दोनों इकट्ठे बैठे मैच देख रहे थे जब दादा जान ने उससे पूछा। बहुत अच्छी, बस फाइनल होने वाले हैं, मैच देखते हुए जवाब दिया। गुड, फिर क्या इरादा है? उन्होंने बगौर उसे देखते हुए पूछा। वो चौंका। क्या मतलब? फिर पूरा टाइम दूंगा बिजनेस को, उसने अपनी दानिस्त में सही जवाब दिया। बिजनेस तो बेटा माशाल्लाह तुम संभाल ही लोगे, बिजनेस के अलावा भी कोई काम होता है, दादा जान ने आंख मारते हुए कहा। उसने नासमझी से उन्हें देखा। कौन से काम? सब्जी लाना, शॉपिंग करना, फिर बाद में ऑफिस से आते हुए पैम्पर लाना। उनकी बात पर पहले सुभान का मुंह खुल गया, फिर दोनों का इकट्ठा कहका गूंजा। उफ दादू, आप भी ना, वो हंसते हंसते बोला। अरे बरखुदार, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। क्या इरादा है शादी का? हमें भी कोई खुशखबरी सुना दो, घर में रौनक लाओ। दादू ने हमेशा वाली बात दोहराई। क्या दादू, कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ, अगर कोई पसंद है तो बता दो, वरना मैं खुद कोई ढूंढता हूँ। उनकी बात सुनते ही हंसी की आवाज उसके कानों में गूंजी और गुस्से से नाक फैलाए लड़की का सरापा उसके आंखों के आगे लहराया। हेलो, कहाँ खो गए? उन्होंने उसका कंधा हिलाया। कहीं नहीं, उसने अपना सर झटका। तो बताओ, कोई है या मैं ढूंढूं? दादू तो फुल तैयारी में लग रहे थे। अभी आप रुक जाएं दादू, मुझे पहले पढ़ाई से फारिग हो जाने दें, उसने हथियार डालते हुए कहा। ठीक है, लेकिन पेपर होते ही मुझे बता देना, दादू ने भी अपना फैसला सुनाया। जी जी बता दूंगा, अब मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, डिनर पर मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गया। बालों की हाई पोनी बनाए, जीन्स पर लॉन्ग शर्ट पहने, स्टालर गले में डाले, वो गाड़ी की तरफ आई और दरवाजा खोलने ही लगी जब अरकम ने उसे आवाज दी। कहाँ जा रही हो भूतनी? काम से जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी, मसरूफ से अंदाज में कहा। ऐसा कौन सा काम है? घर चलो, सब इकट्ठे बैठे हैं, हमेशा की तरह रोब झाड़ते हुए वो बोला। बस काम है ना, आती हूँ कुछ देर में, उसने भी चिढ़ कर कहा। ओके, अरकम ने सर हिलाया और घर चला गया। एक तो इसे मेरी जासूसी के अलावा कोई काम नहीं है। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी माल की तरफ मोड़ ली। 1 घंटे से वो मॉल में घूम रही थी। ये पहली दफा था जब वो अकेली शॉपिंग के लिए आई थी, वरना हमेशा अरकम उसके साथ होता था। अब उसकी बर्थडे का गिफ्ट लेना था, इसीलिए उसे साथ चलने के लिए नहीं कह सकती थी। अभी वो सोचों में ही गुम थी कि किसी ने उसे आवाज दी। उसने चौंक कर सामने देखा। स्किन पैंट और वाइट शर्ट पहने सुबहान सामने खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही उनकी बातचीत होती थी। तुम यहाँ अकेली? अरकम नहीं है? उसने दाएं बाएं देखकर पूछा। नहीं, अरकम नहीं आया, मैं अकेली ही हूँ, उसने भी रस्मन जवाब दिया। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, तुम करो शॉपिंग। उसे समझ नहीं आई वो क्या बात करे, उनमें इतनी बेतकल्लुफी तो थी नहीं। वो जाने लगा, तभी सना के जहन में धमाका हुआ। उसने उसे रोका। सुभान जी, वो मुड़ा। वो मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? वो झिझकते हुए बोली। जी, वो मुझे अरकम के लिए शर्ट पसंद करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं पूरे 1 घंटे से दुकानों में घूम रही हूँ, असल में मैं शॉपिंग के मामले में बिल्कुल ज़ीरो हूँ, उसने असल वजह बताई। क्यों नहीं, आओ, उसने मुस्कुरा कर कहा और सना के साथ एक दुकान में चला गया। थोड़ी देर बाद ही वो अरकम के लिए शर्ट्स ले चुकी थी। अब वो दोनों इकट्ठे माल से बाहर निकल रहे थे। थैंक यू सो मच सुभान, अगर तुम ना होते तो मैं रात तक ऐसे ही घूमती रहती, उसने ममनूनियत से कहा। कोई बात नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा, साथ ही आइसक्रीम बार देखकर उसकी तरफ मुड़ा। आइसक्रीम खाएं?
नहीं थैंक्स, उसने तरद्दुद किया। अरे कोई बात नहीं, आओ खाते हैं। उसने उसके हाथ से बैग्स लेकर उसकी गाड़ी में रखे, फिर दोनों आइसक्रीम बार की तरफ मुड़ गए। ये लो, उसने आइसक्रीम सना को पकड़ाई, फिर पेमेंट करके वॉलेट जेब में रखा तो गाड़ी की चाबी गिर गई। दोनों ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा, दोनों ही मुस्कुरा दिए। उसने झुककर चाबी उठाई और अपनी आइसक्रीम पकड़कर दोनों गाड़ी की तरफ आ गए और बातों में मसरूफ होकर आइसक्रीम खाने लगे। हाय सुबहान, आवाज पर सुबहान ने सना के पीछे देखा जहां रुदाबा खड़ी थी। हाय, वो बमुश्किल मुस्कुराया। उसके पास आई। सना ने मुड़कर उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी सुबहान के साथ। रुदाबा को सच में गहरा सदमा लगा। नजर नहीं आ रहा, आइसक्रीम खा रही हूँ, सना ने बाइट लेते हुए कहा। हटाओ इसे, उसने झटके से उसके हाथ से आइसक्रीम गिराई। सुबहान ने हैरत से रुदाबा को देखा। ये क्या हरकत है रुदाबा? सुबहान गुस्से से बोला। सना ने गुस्से से उसे देखा। इर्द गिर्द के लोग भी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मिस चैरिटी, सुबहान से दूर रहो, तुम्हारी औकात नहीं है सुबहान से दोस्ती करने की। दोस्त अपने टाइप के बनाओ, चलो शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से, उसने उंगली उठाकर उसे कहा तो सना ने उसका हाथ बाजू से पकड़कर नीचे किया। मैं इर्द गिर्द का लिहाज कर रही हूँ, वरना तुम्हें अच्छे से बताती कि सना यजदान कौन है। वो गुस्से से कहती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ये क्या तरीका है रुदाबा बात करने का? सुबहान ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये इसी लायक है, शट अप। ये जो हरकत तुमने की है ना, नहायत ही घटिया थी। सुबहान को बहुत बुरा लग रहा था। सुबहान, तुम उसकी वजह से मुझ पर चला रहे हो? रुदाबा ने गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुर से कहा। हाँ, सुबहान चीखा। तुम सना से माफी मांगोगी? रुदाबा, माफी? माई फुट, उसने अपनी हील जमीन पर मारी। जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगोगी मेरे सामने आने की हिम्मत भी मत करना। वो गुस्से से कहकर गाड़ी में बैठा और जान से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सना, तुम मेरे सुबहान को मुझसे छीनोगी? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो सब रात के खाने पर इकट्ठे बैठे थे। राबिया बेगम ने सना को भी खाने के लिए रोक लिया था। अरसल बेटा, खाओ ना, इतने कमजोर हो गए हो, मुझे पता है तुम वहाँ सही नहीं खाते पीते। राबिया बेगम ने अरसल की प्लेट को देखते हुए कहा, जिसमें थोड़ा सा खाना डाला गया था। मामा, खा रहा हूँ, आप अब इधर ही हूँ, आप मजे मजे के खाने खिलाना। चुड़ैल, तुम कहाँ गई थी? अरकम ने साथ बैठी सना से आहिस्ता से पूछा। तुमसे मतलब? वो झंझला कर बोली। हर 10 मिनट बाद अरकम उससे ये सवाल पूछ रहा था और जवाब ना देने पर मशकूक नजरों से घूर रहा था। दानी बेटा, क्या कर रहे हो? आप छोड़ो इसे। शिजा ने दानियाल के हाथ से चम्मच पकड़ी। वो उसको खुद खिला रही थी, लेकिन वो बार बार उसके हाथ से चम्मच पकड़कर प्लेट पर मारने लग जाता था। अरसल ने मुस्कुराकर उन्हें देखा, फिर शिजा की प्लेट को जिसमें खाना वैसे ही पड़ा था। उसने टिश्यू से हाथ साफ किए। इधर आओ। शेर, क्यों तंग कर रहे हो मामा को? उसने शिजा की गोद से दानियाल को उठा लिया। अरसल, आप खाना खाएं? शिजा ने उसे उठते देखा तो फौरन कहा, बस मैंने खा लिया है, मैं इसको संभालता हूँ, तुम आराम से खा लो। वो मुस्कुराकर उसे कहता दानियाल को लेकर लाउंज में चला गया। रजा साहिब और राबिया बेगम भी उठ गए। सब खाना खा चुके थे। अब सिर्फ शिजा, अरकम और सना टेबल पर मौजूद थे। शिजा ने खाते खाते नजर उठाकर उन्हें देखा, जो यकीनन किसी बहस में ही मसरूफ थे। किस बात पर बहस चल रही है? उसने बर्तन समेटते हुए आखिर में पूछ ही लिया। शिजा आपी, ये आपका बेअकल देवर। उसने अरकम की तरफ हाथ से इशारा किया। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने बड़ा सा मुंह बनाया। किस बात के? सुबह मैं काम से कहीं बाहर गई थी। कब से पूछे जा रहा है कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? सना ने मुंह चढ़ाते हुए कहा। क्योंकि आपी, कोई बात है जो ये मुझे नहीं बता रही। ये जहां मर्जी जाए, मुझे इशू नहीं, लेकिन कोई बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। अरकम अब भी मशकूक था। सना, कोई बात है क्या? शिजा ने भी उससे पूछा, क्योंकि जब वो आई थी तो काफी गुस्से में थी। नहीं आपी, कोई बात नहीं है, वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए गुस्से थी। अब तो ठीक हूँ। उसने शिजा को मुतमिन करना जरूरी समझा। अच्छा चलो, अरकम तुम भी तंग ना करो,
उन्हें बोलकर शीजा बर्तन उठाने लगी। सना भी उसकी मदद के लिए उठ गई। शीजा और सना दोनों जब किचन समेट कर आई तो लाउंज में अरकम और अरसल टीवी देख रहे थे और दानियाल अरसल की गोद में बैठा उसकी घड़ी को अपने हाथों में पहनकर खेल रहा था। अब मैं चलती हूँ, खाना बहुत मजे का था आपी। वो उससे गले मिलकर सबको अल्लाह हाफिज कहकर मुड़ गई तो अरकम भी फौरन उसके पीछे बाहर भागा। सन, मैं कॉल करूंगा और मुझे जवाब चाहिए, बिना किसी आनाकानी के, वो वार्न करता हुआ वापस हो लिया। लाएं, अरसल उसको सुला देती हूँ, काफी टाइम हो गया है। शीजा ने दानियाल को उठाना चाहा लेकिन वो फौरन अरसल के साथ लग गया। बाबा के पास सोना है, वो अरसल के गले लग गया। हाँ, मामा के पास नहीं सोना, अरसल ने प्यार से अपने बेटे को देखते हुए कहा। नहीं, उसने लाड से बाप को देखा तो अरसल ने बेइख्तियार उसे चूम लिया। ठीक है, तो आज शेर बाबा के पास सोएगा, अरसल उसको गुदगुदाते हुए बोला, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। मैं इसको कमरे में लेकर जा रहा हूँ, तुम इसका दूध ले आओ, वो शीजा को कहता हुआ ऊपर चला गया। कुछ देर बाद वो कमरे में आई तो अरसल दानियाल को आहिस्ता आहिस्ता थपक रहा था। वो सो चुका था। उसने उसका दूध साइड पर रखा और अरसल की कॉफी उसकी तरफ बढ़ाई, जिसको थाम कर अरसल टेरेस पर चला गया। उसने दानियाल पर अच्छे तरीके से कंबल डाला और बाल ठीक करके अरसल के पास आ गई जो बाहर देख रहा था। उसके कंधे पर सर टिका दिया। अरसल जो कुछ सोच रहा था एकदम चौंका और फिर मुस्कुराकर कॉफी का घूंट लिया। शीजा की मोहब्बत ने अरसल को भी उससे से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया था। शीजा की सच्ची मोहब्बत की जीत हुई थी और उसने अरसल को पा लिया था। अरसल ने दिल से तस्लीम कर लिया था कि माहम अहमर की ही थी। वो माहम की अहमर के लिए मोहब्बत देख चुका था। उसकी निस्बत उसकी मोहब्बत तो कुछ भी नहीं थी। उसने दिल से ये बात तस्लीम कर ली थी। उसने आहिस्ता से अपने बाजू पर मौजूद शीजा का हाथ थामा। वो बस एक बार माहम का शुक्रिया अदा करना चाहता था जिसने उसके लिए इतनी अच्छी हम सफ़र मुंतखब की थी। उसने दोस्ती आखिरी सांस तक निभाई। वो जानती थी कि वो टूट जाएगा, इसलिए उसने अपने वादे से जोड़े रखा। उसका वादा निभाने की गर्ज से उसने शीजा को अपनाया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि माही ने उसे दोस्ती का अनमोल तोहफा दिया था। उसका हाथ अपने लबों से लगाया। आपको नींद नहीं आ रही क्या? शीजा ने पूछा। आ रही है, अरसल ने जवाब दिया। तो चले अंदर। शीजा उसका हाथ थमे अंदर की तरफ बढ़ गई। साइड टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था, लेकिन वो होश से बेगाना सोई हुई थी। आखिरकार 20वीं कॉल पर उसने हाथ मारकर मोबाइल उठाया और कान से लगाया। हेलो, क्या है? झंझलाई हुई नींद से बोझल आवाज उभरी। तुमने टाइम देखा है? अरकम चीखते हुए बोला। तुमने टाइम पूछने के लिए मुझे कॉल की है? हाय, तुम्हें कहीं सुबह का अंधापन वाली बीमारी तो नहीं हो गई? सना के हवास बहाल हुए तो उसने शरारत से कहा। क्या मतलब है इस बात का? उसने त्यूरी चढ़ाई। टाइम का क्यों पूछ रहे हो मुझसे? उसने करवट लेकर कंबल अपने मुंह पर डाला। तुम्हें शायद याद नहीं कि यूनी का टाइम हो रहा है और तुम बिस्तर में पड़ी हो। वो बहुत गुस्से से बोला। अबे, आज संडे नहीं है? उसने जमाई रोकते हुए कहा। नहीं, उसने नाक फैलाया। कल हफ्ता नहीं था क्या? उसने इस्तफसार किया। जाहिर सी बात है यार, नहीं। हाय कम्मू, आज का लेक्चर तो मैं मिस नहीं कर सकती। वो झटके से उठी। जल्दी से तैयार हो और बाहर आओ। ओके। फोन बंद करते ही वो फौरन तैयार होने चली गई और 15 मिनट बाद बाहर की तरफ भागी। बाद में घूर लेना, मुझे अभी चलो, अरकम को बोलकर वो फौरन गाड़ी में बैठी। उसके बैठते ही अरकम ने फौरन गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ाई। लेक्चर खत्म होते ही अलीना सना की तरफ मुड़ी। आज लेट क्यों हुई? अलीना ने उससे पूछा। यार, वो आंख ही नहीं खुली थी। वो अभी भी सोना चाहती थी। हाँ, आज ये सारे गधे बेचकर सो रही थी। अरकम की बात पर अलीना मुस्कुराने लगी, जबकि सना ने उसे घूर कर देखा। सारे कहाँ? अभी एक रहता है, वो भी सना थी। जब थोड़ी रहती उसकी बात पर वकास और अलीना हंसने लगे।
तुम्हें तो मैं बाद में पूछता हूँ, अरकम ने मुंह पर हाथ फेर कर कहा। पूछ लेना, अभी चलो, बहुत भूख लगी है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। चलो, सब ने यक ज़बान होकर कहा। कैंटीन से चीजें लेने के बाद वो ग्राउंड में आकर बैठ गए। एक तो मैं अपने लेक्चर्स से बहुत तंग हूँ, दो दो क्लास के लिए आना पड़ता है। एक अगर 8 बजे है तो दूसरी 11 बजे। अब बैठो, 2 घंटे फारिग, वो सर झटकते हुए बोली और चाय का घूंट लिया। हाँ, ये तो है, अलीना ने बोलते ही सामने देखा, जहाँ दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां बैडमिंटन से खेल रही थी। सना, हम भी खेलें? उसने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। हम कहाँ से खेलेंगे? सना को भी जोश आया, लेकिन रैकेट नहीं थे उनके पास। ओहो, तो वो देखो, उनके पास एक्स्ट्रा हैं, उनसे ले लेते हैं। रुको, मैं लेकर आती हूँ, कहते ही वो उनकी तरफ बढ़ गई और कुछ देर बाद हाथ में बैडमिंटन लिए वापस आई। चलो उठो सना, अलीना ने खुशी खुशी चहकते हुए कहा। मैं अभी चाय पी रही हूँ, तुम अरकम के साथ खेल लो। उसने कप लबों से लगाकर मुस्कुराहट रोकी। मैं, वो जो वकास के साथ लैपटॉप में मसरूफ था, चौंका। हाँ, अरकम उठो, उसने उसकी तरफ रुख किया। मैं काम कर रहा हूँ, वो फौरन बोला। ओके, कोई बात नहीं, फिर कभी खेल लेंगे। वो मुस्कुराकर मुड़ गई, लेकिन अरकम ने फौरन खड़े होकर उसे रोक दिया। नहीं, आओ लीना, इतना भी कोई जरूरी काम नहीं है, बाद में कर लूंगा। उसने आगे बढ़ कर उससे एक रैकेट लिया। थैंक यू, वो मुस्कुराकर बोली और दोनों बाएं जानिब जाकर खेलने लगे। सना उन्हें देख रही थी। वाह अलीना, तुम तो बहुत अच्छा खेलती हो, ये मेरी पसंदीदा गेम है। हाँ, वो खेलते हुए बोल रहे थे। हेलो गाइस, असद उनकी तरफ आकर बोला। सुबहान भी उनके साथ था। सना ने नजर उठाकर उसे देखा। वो दोनों वकास के साथ आकर बैठ गए। क्या कर रही हो दबंग सना? असद ने उससे पूछा। उसने नजर उठाकर उसे देखा। सॉरी सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मतलब था क्या कर रही हो सना? वो गड़बड़ा कर बोला। उसकी हालत देखकर सना मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं कर रही, उसने रजिस्टर बंद करके बैग में डाला। सुबहान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसकी हार्ट बीट मिस हुई। उसने फौरन रुख वकास की तरफ कर लिया। मैं तो बहुत थक गई, अलीना सना के पास बैठकर बोली और रैकेट सना को दिया, जिसको थाम कर वो खड़ी हो गई। चल कम्मू, उसको भी जोश आया हुआ था। मेरे पास तो अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये लो सुबहान, तुम खेलो। अरकम भी उसका दोस्त था। बदला लेते हुए उसको भी सुबहान के साथ खेलने का बोला, क्योंकि कल रात वो उसे सारी डिटेल बता चुकी थी, सवाए उसके गिफ्ट के। मैं सुबहान ने हैरत से पूछा। मैं, आ जाओ सुबहान, एक गेम खेल लेते हैं। सना ने भी पूरे एतमाद से उसे कहा। ओके, वो रैकेट पकड़ता खड़ा हो गया। देखो सुबहान, आहिस्ता खेलना, मुझे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, सना ने आहिस्ता से कहा। ओके, दोनों ने गेम शुरू कर दी। दोनों ही कमाल का खेल रहे थे। यूनिवर्सिटी में दाखिल होती रुदाबा की नज़र जूं ही ग्राउंड पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुबहान, जो किसी लड़की से बिला वजह बात भी नहीं करता था, वो सना के साथ खेल रहा था। उसने उनकी तरफ गुस्से से कदम बढ़ाए, लेकिन फिर अचानक रुक गई। सुबहान की बात उसके कानों में गूंजी। जब तक तुम सना से माफी नहीं मांगोगी, मेरे सामने मत आना। रिलैक्स रुदाबा, अब गुस्से से नहीं, अक्ल से काम लेना है। लंबे लंबे सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और उनकी तरफ बढ़ गई। हाय गाइस, आवाज पर सब ने मुड़कर उसे देखा। अरे रुदाबा, तुम बहुत जल्दी नहीं आ गई? असद उसको देखकर बोला। सुबहान ने सना को देखा, जो बिल्कुल मुतमिन थी। उसके चेहरे पर गुस्से के कोई आसार नहीं थे, वरना जितनी बदतमीजी रुदाबा ने कल की थी, उसको लगा शायद सना उसको सुनाएगी, लेकिन वो बिल्कुल आराम से आगे बढ़कर अपना बैग उठाने लगी। सुबहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। उसको सना को देखकर क्या हो जाता था, उसको अपने दिल की कैफियत की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सना से बात करके उसे अच्छा लगता था। हेलो सोबी, कहाँ गुम हो? रुदाबा के बुलाने पर वो जो सोचों में गुम था, अचानक चौंका और फिर बगैर उसको जवाब दिए अरकम लोगों के साथ क्लास की तरफ बढ़ गया। हाले दिल, वो चाय का कप थामे टेरेस पर खड़ी थी जब सीमा बेगम ने उसे बुलाया। अलीना बेटा, ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। आती हूँ, कुछ देर तक मामा। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो यहाँ पर? वो भी उसके पास बाहर आ गई। कुछ नहीं, उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। बाबा को याद कर रही हो? उन्होंने आहिस्ता से उसके बालों को कान के पीछे किया।
बाबा की याद तो हमेशा ही आती रहती है, वो नम लहजे में बोली। मामा, मैं सोच रही हूँ कोई जॉब कर लूँ, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। क्यों बेटा? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। मामा, बाबा की सेविंग्स से कब तक गुजारा करेंगे? उसने अपने हालात का अंदाजा लगाते हुए कहा। बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तुम आराम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, उनको अच्छा लगेगा क्या कि उनकी लाडली बेटी ऐसे बाहर कमाने जाए? उनकी बात पर अलीना उनके गले लग गई। मामा, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। अच्छा, दुखी ना हो, मुझे एक बात करनी है, आओ अंदर। वो उसका हाथ थाम कर अंदर ले आए और बेड पर बिठाकर खुद भी उसके सामने बैठ गई। खैरियत मामा, क्या बात है? उसे परेशानी हुई। बेटा, 2 महीनों तक तुम पढ़ाई से फारिग हो जाओगी, वो बात करने से पहले तमहीद बांध रही थी। जी, साथ वाली आलिया तुम्हारे लिए अपने जानने वालों का रिश्ता लाई है, अगर तुम कहो तो संडे को उन्हें बुला लूं घर। अलीना ने तड़प कर उन्हें देखा। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अभी शादी नहीं कर सकती मामा, आपको छोड़कर नहीं जा सकती। उसने उनके हाथ थाम लिए। बेटा, एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना, तो कितना ही अच्छा हो अगर ये फर्ज जल्द अदा हो जाए। और मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे मामू तो मुझे पहले ही अपने पास बुला रहे हैं, मैं वहाँ चली जाऊंगी, उसे समझाते हुए कहने लगी। फिर भी मामा, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, उसने इनकार करना चाहा। अभी थोड़ी ना कर रही हूँ, अभी तो सिर्फ बुलाने का पूछ रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बिला झिझक मुझे बता दो। उन्होंने नम आंखों से मुस्कुरा कर उससे पूछा। अलीना का सर झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे। मेरा नाम अरकम है। अलीना, थैंक यू ना कहा करो, ध्यान से अभी गिर जाती। तुम तो बहुत अच्छा खेलती हो। एक सरापा उसकी आंखों के सामने आया। उसने अपना सर झटका और दिल में सोचा, अगर मैं अरकम को बोल भी दूं कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, और अगर उसने आगे से मना कर दिया, वो किसी और को पसंद करता हुआ, तो कहाँ खो गई? सीमा बेगम की आवाज पर वो एकदम चौंकी। जी, कुछ नहीं मामा, आपको जो सही लगे आप वो कर दें। उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। वो माँ थी और माँ तो औलाद की हर एक रग से वाकिफ होती है। उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा कर सर हिला दिया और अलीना उनकी गोद में सर रख कर लिपट गई। आज कराची का मौसम साफ था, हवा में ठंडक थी, लेकिन आसमान साफ था। वो दोनों साथ चलती लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी। यूनिवर्सिटी में तालबा की तादाद कम हो गई थी, क्योंकि आजकल तकरीबन सब ही फाइनल्स की तैयारी के लिए छुट्टियां कर रहे थे। सना ने मुड़कर साथ चलती अलीना को देखा, जो सुबह से ही चुपचाप थी। अलीना, कोई बात है क्या? सना के अंदर का जासूस जागा। नहीं तो, वो फीका सा मुस्कुराई। फिर तुम चुपचाप क्यों हो? आंटी ठीक है? उसे वो किसी गहरी सोच में लगी। हाँ ठीक है, अभी भी, उसने सरसरी सा जवाब दिया। सना, वो दोनों रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। अरकम और वकास भागकर उनकी तरफ आए। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ नहीं आए तो घर चलें? अरकम उनके करीब आकर बोला। अलीना की नजरें झुकी हुई थी। उसके दिमाग की घंटी बजी। नहीं अरकम, कुछ देर ग्राउंड में चलकर बैठते हैं। वो अलीना को अपने साथ लिए आगे बढ़ी। ओके चलो। वो सब ग्राउंड की तरफ बढ़ गए। सन, ये प्रॉब्लम की हुई है तुमने? अरकम ने उससे पूछा। नहीं, मैंने नहीं की हुई, अलीना ने की होगी, इससे ले लो। इसको जवाब देकर सना दोबारा काम में मगन हो गई। अलीना, तुमने की है ये? अलीना, अरकम ने उसको 2 दफा बुलाया, लेकिन वो नोटिस पकड़े सोचों में गुम थी। वकास और सना ने उसकी तरफ देखा। अलीना, सना ने उसका कंधा हिलाया। हाँ, वो चौंकी। वो तीनों उसको ही देख रहे थे। क्या हुआ? उसने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए पूछा। हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? सना ने उसका हाथ थाम कर पूछा। उसके इस तरह पूछने पर अलीना की पलकें भीगने लगी। उसने अपना हाथ छुड़ाया। नहीं कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। वो बैग पकड़कर उठ गई। अरे सुनो तो, सना उसके पीछे भागी। अरकम ने वकास को देखा, जो अलीना और सना को देख रहा था। वकास, वो रो क्यों रही है? अरकम को कुछ गड़बड़ लगी। शायद घर में कोई प्रॉब्लम हो। अरकम भी उठकर उनकी तरफ बढ़ा। ए अलीना, क्या हुआ है यार?
ادھر بیٹھو۔ سنا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بینچ پر بٹھایا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، سنا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ الینا، کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو۔ بتاؤ یار کیا بات ہے، مجھ سے شیئر کرو، میں تمہاری ہیلپ کروں گی۔ اس نے الینا کے آنسو صاف کیے۔ ارکم پیچھے دیوار کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ الینا کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ بتاؤ شاباش، کیا بات ہے؟ اس نے الینا کا چہرہ اونچا کیا۔ سنا، اس نے روتے ہوئے سنا کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں جانی، میں سن رہی ہوں، تم رونا تو بند کرو۔ سنڈے کو مجھے دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ ارکم کے سر پر تو گویا بم پھوٹا۔ اس نے فوراً دیوار کو تھاما۔ سنا بھی کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی اور پھر بولی، اف لڑکی، اتنی سی بات پر تم اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے۔ سنا نے اسے چپ کروانے کی غرض سے کہا، یہ اتنی سی بات نہیں ہے سنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ بابا کے لاڈ پیار نے مجھے بہت بگاڑ دیا ہے۔ ماما ٹھیک کہتی ہیں، میں بہت ڈرپوک ہوں۔ تم سب سے دوستی کر کے مجھے بہت ہمت ملی ہے، ورنہ مجھ میں تو کسی سے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ لیکن شادی کا رشتہ، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کو تو میں جانتی ہوں، لیکن وہ شخص میرے لیے بالکل نیا ہوگا۔ میں دن رات اس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ ارکم نے ضبط سے مٹھیاں بھینجی۔ اذیت سے اذیت تھی، اس کے دل پر جیسے کوئی خنجر سے بار بار وار کر رہا تھا۔ دیکھو الینا، جب تم اس کے ساتھ رہو گی، وقت گزارو گی، تب تم اسے بھی جان جاؤ گی۔ اچھا ادھر دیکھو، چپ کرو پہلے۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کر کے آنسو صاف کیے۔ اوکے، تم آنٹی کو منع کر دو، جب تک تم مینٹلی تیار نہیں ہو جاتی شادی کے لیے ہاں مت کہو، اوکے؟ اور آنٹی تو تم سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ تمہاری بات مان جائیں گی۔ اب رونا نہیں ہے، اچھا؟ ورنہ مار کھاؤ گی، پاگل۔ ادھر آؤ۔ سنا نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اور کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ پیار ویار کا کوئی چکر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے آنکھیں چرائی۔ کچھ تو ہے، یہ بات اس نے دل میں سوچی۔ اچھا اٹھو، اب آؤ جوس پلاؤں۔ حالت دیکھو کیا بنا لی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ ارکم کو وہ دیکھ چکی تھی۔ گھر آ کر وہ بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ شام کو سنا رضا ہاؤس آئی۔ لون میں ارسل دانیال کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ رابعہ بیگم، رضا صاحب چائے پیتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ سب کو سلام کر کے کچن میں آ گئی، جہاں شیزا رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اسے ڈھونڈا، لیکن جانتی تھی ابھی وہ کمرے میں ہی ہوگا۔ السلام علیکم شیزا آپی۔ وہ پیار سے اس کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری چندا؟ میں بالکل ٹھیک۔ اس نے پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر کھایا۔ سنا، شیزا اس کی طرف مڑی۔ جی؟ ارکم کو کیا ہوا ہے؟ یونیورسٹی سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گیا ہے، نہ کسی سے بات کی ہے، نہ کھانا کھایا ہے۔ اس نے ایک اور کھیرا منہ میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، آپ ٹینشن نہ لو۔ وہ پیپرز سے پہلے ایسے ہی کمرے کی بند ہو کر پڑتا ہے۔ کھانا اس لیے نہیں کھایا، وہ یونیورسٹی میں کھا لیا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ جاؤ تم یہ چائے اسے دے آؤ، میں دانیال کو دیکھتی ہوں۔ یہ کہتی وہ کچن سے نکل گئی تو سنا نے کوہنی شیلف پر ٹکا کر چہرہ ہاتھ پر رکھا۔ ہائے کیا بتاؤں آپی، آج آپ کا دیور صدمے میں ہے اور پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح کمرہ بند کر کے بیٹھا ہے۔ منا لے کمو، منا لے، آج تو غم منا لے، تجھے بھی پتا چلے۔ صحیح کہا ہے شاعر نے، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اشارتاً شعر پڑھتی وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح آج مہکی سی تھی۔ وہ کندھے پر بیگ ڈالے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی تو وقاص بھی بھاگ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ السلام علیکم، یہ ہیرو کہاں گیا؟ اس نے باہر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کہہ رہا تھا انکل کے کام سے جانا ہے، کچھ دیر بعد آ جائے گا، وہ یونی ساتھ چلتے اسے بتا رہی تھی۔ اچھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے کلاس میں پہنچ گئے، جہاں الینا پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ گاڑی پارک کر کے مال کے اندر جانے لگا جب اس کو کسی نے آواز دی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ وہی ہو نا جو اس لڑکی کے ساتھ تھے؟ ارکم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ہم سی سائیڈ پر ملے تھے جب وہ بچی رو رہی تھی۔ ارکم کو ایک دم یاد آیا۔ جی مجھے یاد آ گیا، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر،
بالکل ٹھیک۔ وہ کیسی ہے اب؟ انہوں نے ثنا کو پوچھا۔ جی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس نے ثنا کا بتایا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ آج کل کے دور میں وہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے پریشان ہوئے تھے۔ اچھا، گڈ۔ بائی دا وے، میرا نام ارجمند علی شاہ ہے۔ انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرا نام ارکم ہے۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ ارکم نے مسکرا کر ان سے ہاتھ ملایا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ بیٹا اگر تم برا نہ مانو، میں دوبارہ اس بچی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم اپنا نمبر مجھے دے دو، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی جی انکل، ضرور، کیوں نہیں۔ آپ نے اسے اتنے اچھے سے سمجھایا تھا۔ جانتے ہیں وہ آپ کو میجک مین کہتی ہے۔ ارکم نے نمبر ان کے موبائل میں سیو کر کے موبائل ان کی طرف بڑھایا۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا، اور میرا پوتا کہتا ہے وہ مسٹری گرل ہے۔ چلو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ مل کر چلے گئے تو ارکم نے بھی مال کی طرف دوڑ لگائی۔ اسے آج ہر حال میں یہ کام کرنا تھا۔ پورا ایک دن کمرے میں بند ہو کر اس نے سوچ لیا تھا اسے اب کیا کرنا ہے۔ یہ سب کس چیز کی تیاری چل رہی ہے؟ ثنا نے وقاص سے پوچھا۔ وہ تینوں راہداری سے گزر رہے تھے۔ اینول پارٹی کی تیاری چل رہی ہے۔ ابے اچھا، وہ ابھی یونیورسٹی میں تو رونق لگے گی اب، ثنا نے جوش سے بولا۔ ہاں بس دیکھتی جاؤ۔ وہ تینوں آگے بڑھ رہے تھے کہ لڑکیوں کا گروپ ان کے پاس آیا اور ان کا راستہ روکا۔ وہ سب نیو اسٹوڈنٹس تھے۔ آپی، اگر ہم آپ سے کچھ کہیں تو آپ مانیں گی؟ دو لڑکیوں نے معصوم سا منہ بنا کر انہیں کہا۔ الینا اور ثنا نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان کو دیکھا۔ جی کہیے۔ آپ کو پتا ہے نا اینول پارٹی کی تیاری چل رہی ہے۔ ہم فری تھے تو جسٹ فن کے لیے ہمیں یہ ڈیئر ملا ہے، موسٹ سینئر سے گانا سننا ہے۔ ان کی بات پر تینوں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تو آپ کسی اور سے اسے کہہ دو، اور بھی بہت سے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں، ثنا نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز نا، آپ سنا دیں، آئیں پلیز۔ میں تو نہیں، یہ بہت اچھا گاتی ہے، ثنا نے خود کو بچاتے ہوئے۔ جھوٹ مت بولو، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے 10th کے فیئر ویل میں گانا گایا تھا، ثنا نے یاد دہانی کروائی۔ ثنا یہ غلط ہے یار، اس نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلیں چلیں پلیز، چلیں آپی۔ وہ لڑکیاں ان دونوں کو اپنے ساتھ گراؤنڈ میں لے گئی۔ وقاص کی نظر سامنے سے آتے ارکم پر پڑی جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کہاں تھا تو؟ وقاص نے اس سے پوچھا، لیکن وہ دائیں طرف ثنا اور الینا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ کام سے گیا تھا۔ یہ انہیں کہاں لے گئے؟ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں بھی اس طرف بڑھ گئے۔ چلیں آپی شروع کریں۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر مائک الینا کو دیا۔ ثنا میں نہیں گا رہی، میرا بالکل بھی دل نہیں ہے، وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ ارے پاگل، کچھ نہیں ہوتا، ہم سب بھی تمہارا ساتھ دیں گے، ہے نا؟ دیں گے نا؟ اس نے ہاتھ کھڑے کر کے اونچی آواز میں سب سے پوچھا۔ بالکل دیں گے، سب نے ایک ساتھ کہا۔ الینا نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، پھر مائک کو قریب کیا اور گانا شروع کیا۔ سب نے تالیاں بجا بجا کر اسے داد دی۔ ثنا نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ ثنا کی نظر ارکم پر پڑی، وہ الینا کو دیکھ رہا تھا۔ الینا نے فوراً نظریں نیچے کر لی اور جانے کے لیے اٹھ گئی۔ سب نے تالیاں بجا کر اسے داد دی، ساتھ ہی باقی اسٹوڈنٹس گا رہے تھے۔ سبحان اور اسد بھی ادھر ہی آ گئے۔ ثنا ساتھ بیٹھی لڑکی سے بات کر رہی تھی، تبھی سبحان سے گانے کی فرمائش کی جانے لگی، جس پر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی اسے جانا ہے۔ ثنا نے ارد گرد دیکھ کر ارکم کو ڈھونڈا جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ وقاص کے پاس آئی جو سبحان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وقاص، ارکم کہاں ہے؟ ثنا نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ الینا کے پاس گیا ہے، وہ ایک آنکھ دبا کر بولا۔ ثنا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تبھی وقاص کا موبائل بجا، اس نے فوراً جھپٹا۔ اے ثنا، واپس کرو۔ وقاص اس سے موبائل لینے کی صحیح کرنے لگا۔ وہ اسے تنگ کرتی رہی۔ آہا، بھابی کی کال، واہ رے واہ، اداس ہو گئی ہیں کیا؟ سبحان مسکراہٹ دبائے اس کی شرارت دیکھ رہا تھا۔ وہ دن بدن اس کے دل تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کو کتنا پسند کرنے لگا ہے۔ ثنا، موبائل دو یار۔ اچھا یہ لو۔ کیا یاد کرو گے؟ کس سے پالا پڑا ہے، جاؤ۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل اس کو دے دیا۔ وقاص نے فوراً موبائل پکڑا اور دوسری طرف چلا گیا۔ اس نے سبحان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
वो भी मुस्कुराते हुए पलट गई। वो बेंच पर बैठी रजिस्टर पर कुछ लिख रही थी या शायद लकीरें खींच रही थी जब अरकम ने उसे बुलाया। उसने चौंक कर सर उठाया और खड़ी हो गई। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अलीना ने रजिस्टर बंद करते हुए पूछा। नहीं, कोई काम नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। वो संजीदा था। हाँ बोलो, अलीना ने सर हिलाया। अलीना, मैं जानता हूँ ये बात मेरी मामा या घर में से किसी को तुमसे करनी चाहिए, लेकिन पहले मैं तुमसे पूछना चाहता था। अलीना ने उलझ कर उसे देखा। अलीना, मुझे तुम अच्छी लगती हो, अब से नहीं बल्कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से। अलीना का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अरकम ने अलीना के पीछे देखा जहाँ सना खड़ी उसे घूर रही थी। उसने थूक निगला। आई एम डेड। क्या? अलीना ने हैरत से उसे देखा। क्या चल रहा है यहाँ? सना उनके पास आकर बोली। वो मैं सन अलीना से कुछ कहने आया था, अरकम ने बुखलाए हुए कहा। क्या कहने आए थे? आबरू ऊंचा किए वो पूछ रही थी। तुम समझ जाओ ना, उसने आहिस्ता से आंखों से इशारा किया। और मेरा क्या अरकम, मैं भी तो। उसने स्टॉलर अपनी उंगली में लपेटकर उदास होने की कमाल एक्टिंग की। अलीना ने चौंक कर उसे देखा। सना? क्या सना और अरकम? ये तो उसने सोचा ही नहीं। वो जो खुश कुछ देर पहले अरकम की बात सुनकर हुई थी, अब दिल इतनी ही जोर से टूट गया था। उसने आंखों में आते आंसू जब्त किए। मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है, मामा परेशान हो रही होंगी। वो बैग उठाकर चली गई। अरकम ने हैरत से सना को देखा। ये सब क्या किया सन? वो नासमझी से उसे देखते हुए दुख से बोला। प्यार करोगे और मुझसे छुपाओगे तो सजा तो मिलेगी ही ना। वो मजे से पौनी हिलाते हुए बोली और उसे धक्का दिया। यार, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। अरकम ने अब सोचा कि उसने उसे ना बताकर सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो सना ही है जो उसकी रग रग से वाकिफ है। था क्या? मतलब तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। चलो खैर, कोई बात नहीं, माफ किया, उसने खुशी खुशी कहा। क्या माफ किया? अलीना तो चली गई है ना। क्या करें, प्यार में दर्द तो मिलता ही है ना, उसने आंख मारते हुए कहा। शट अप यार सन। अब अलीना मेरा यकीन करेगी भी कि नहीं? ओह, ये तुमने क्या किया? चलो अब। घर पहुंचकर वो बात किए बगैर कमरे में चला गया। ये तो नाराज हो गया। उसने एक नजर रजा हाउस पर डाली और घर चली गई। रात को खाने के वक्त सब साथ बैठे थे। तब वो बोली, अंकल आपको पता है, एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। बात अंकल से कर रही थी, लेकिन देख अरकम को रही थी। बिल्कुल बेटा, रजा साहिब समझते हुए हंसते हुए बोले। तो अंकल अपने बेटे को समझाए ना, वो क्यों नाराज मुझ गरीब से? वो बेचारा सा मुंह बनाकर कहने लगी। बेटा, इस बार वो गलत नहीं है। तुम्हें पता था कि करंट लग सकता है, फिर भी तुमने मेन स्विच को हाथ लगाया और झटका भी लगा तुम्हें। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तुम्हें तो? उनकी बात पर उसने हैरत से उन्हें देखा। वो सोच में पड़ गई कि ये क्या बोल रहे हैं। ओह, तो अरकम ने ये वजह बताई है। उसने सामने बैठे अरकम को घूरा। अंकल मैं ठीक हूँ, अब कोई छुई मुई सी लड़की तो हूँ नहीं कि फट से कुछ हो जाएगा मुझे, उसने लापरवाही से कहा। देखा, देखें इसकी हट दर्मी, एक तो गलती करती है, ऊपर से शर्मिंदा होने की बजाय वकालत करने लगती है। अरकम गुस्से से बोला। बाकी सब यही समझ रहे थे कि बात करंट लगने की है, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो उसके कमरे का दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। कम्मू, क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ? अरकम ने उसको घूर कर देखा। वो कमरे के अंदर ही खड़ी होकर पूछ रही थी। नहीं, उसने गुस्से से कहा। व्हाट? वो शॉक्ड से मुंह पर दोनों हाथ रख कर चीखी। आई सेड नो। बट वाई? वो चेहरे पर मासूमियत लिए पूछ रही थी। आई एम नॉट सपोज टू बी आंसरेबल मिस सना यजदान, बट आई वांट टू द आंसर राइट नाउ। वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं दूंगा जवाब, अब बोलो क्या कर लोगी? वो भी उसके सामने आकर बोला। यार देख, भड़क मत, हो जाता है ऐसा, जिंदगी इसी का नाम है, सना ने भरम छोड़ते हुए हल्के फुल्के लहजे में कहा। अच्छा जी, यू लाइक थ्रिल, एक्शन एंड एडवेंचर? बहुत ज्यादा, उसने दोनों हाथ आपस में जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा। एक काम क्यों नहीं करती, सर्कस में भर्ती हो जाओ, काम भी मिलेगा और शौक भी पूरा हो जाएगा। ओह हाँ,
वो वाला करतब भी सीख लेना जो लड़की तार पर चलती है, उसमें तुम्हें और भी मजा आएगा। और कैसा ही जबरदस्त हो अगर वो तार बिजली की हो। अरकम बहुत चिढ़ा हुआ था। सना ने मुंह बिगाड़ा। अब हो गया ना कम्मू, सॉरी ना, कान पकड़ते हुए मासूमियत से कहा। नहीं नहीं सन, आई एम सो सॉरी। मुझे क्या पड़ी है, क्यों खून जलाऊं मैं अपना। जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी। हाथ जोड़कर कहते हुए वो बेबस लगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ही छत से कूद कर अपनी जान दे देती हूँ, उसने धमकी दी। वाओ, कितना मजा आएगा ना। रोज आराम से उठकर यूं नहीं जाऊंगा, ना किसी को उठाने की फिक्र, ना किसी के खाने पीने का गम। जब बेस्ट फ्रेंड को मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों फिक्र करूं, उसने लापरवाही से कहा। कम्मू, मैं जा रही हूँ, वो जाते जाते कह रही थी। ओके जाओ, उसने मुंह मोड़े बगैर कहा। मैं सच में जा रही हूँ, वो खिड़की की तरफ भर रही थी। तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा। देखो कम्मू, बैठकर मजाकरात हो सकते हैं। वो वापस उसकी तरफ आई। मैं नहीं करना चाहता मजाकरात, बल्कि मैं असेंबली ही तोड़ देता हूँ। कम्मू, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे, उसने उंगली उठाकर भीगी आवाज में कहा। हाँ सन, मैं अच्छा नहीं कर रहा। कम्मू यार, तू नाराज तो ना हो। सन प्लीज घर जाओ और सो जाओ, हम कल बात करते हैं। पक्का? मैं जाऊं कम्मू, उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा। हाँ, वो भी हट दर्मी से बोला। ओके। वो मुंह लटकाकर मुड़ गई। तभी अरकम ने उसे आवाज दी। सन, बात सुनो। वो खुशी खुशी पलटी। हाँ कहो, क्या हुआ? दरवाजा लॉक्ड करके सोना। अच्छा। वो उसे घूर कर अपने घर आ गई और दरवाजे को लॉक्ड किया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी। अरकम बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। तभी गाने की आवाज पर उठा। मेरा दिल ले गई, ओ कम्मू किधर, मैं देखूं उसको इधर उधर। शुरू हो गई उसके ड्रामेबाजियां। उसने बुड़बड़ा कर खिड़की खोल ली और चीखा। सन, हम सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ चुप करके। पक्का? तुम नाराज तो नहीं हो? मुझसे बोलो नहीं हो। हाँ नहीं हूँ, लेकिन प्लीज अभी सो जाओ। ओके। उसने फौरन खुश होते हुए गाना बंद किया और अरकम को हाथ हिलाकर खिड़की बंद कर दी और लाइट ऑफ करके लेट गई। पागल, वो भी सर झटक कर लेट गया। गाड़ी के हॉर्न पर वो बैग कंधे पर डाले बाहर आई और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरकम ने संजीदगी से जवाब देकर गाड़ी स्टार्ट की। कैसे हो? सना के पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसका चेहरा बुझ सा गया। वो किन आंखों से उसे देख रहा था लेकिन बात नहीं कर रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही सना ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुककर उसकी तरफ देखकर बोलना चाहा, लेकिन उसने फौरन से मोबाइल कान पर लगा लिया तो वो मुंह बनाती गाड़ी से उतर गई। उसके उतरते ही अरकम हंस पड़ा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी पार्क करके वो क्लास में दाखिल हुआ तो सामने ही वकास बैठा था। उसने पूरी क्लास में नजर दौड़ाई, सना नहीं थी। ये कहाँ गई? अभी वो देख ही रहा था कि जब अलीना क्लास में दाखिल हुई, वो उनके सामने से गुजरने लगी। जब अरकम ने उससे पूछा, सना कहाँ है अलीना? उसने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर बोली, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी आई हूँ। ये कहते ही वो आगे बढ़ गई। आ जाएगी, वो क्लास कभी मिस नहीं करती। वकास उसे परेशान देखकर दिलासा देते हुए बोला। इतने में मैम फरा आ गई और लेक्चर शुरू हो गया। सुबहान की नजरें भी उसे ही ढूंढ रही थी। डोर बेल बजाने पर एक डिसेंट सी लेडी बाहर आई। जी कहिए, आप सीमा आंटी हैं? जी हाँ, और आप? मैं अलीना की दोस्त सना। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ प्लीज? ओ सना, आओ आओ। अलीना से वो सना के बारे में सुन चुकी थी। जो ही लेक्चर खत्म हुआ, अरकम बाहर की तरफ भागा। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। वो लापरवाह थी लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं थी। उसे पता था कि वो परेशान हो जाएगा और वो सच में परेशान हो गया था। उसने हर वो जगह देख ली जहां पर उसके मिलने के चांसेस थे। उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा था। वो और वकास यहाँ वहाँ सारी यूनिट में भागते फिर रहे थे। जो ही वो बात कहकर चुप हुई, उसने नजर उठाकर सामने देखा। सना की बातें सुनकर सीमा बेगम को पहले हैरत हुई, फिर गुस्सा आने लगा। प्लीज आंटी, मेरी बात को समझिए, वो उनसे दरख्वास्त कर रही थी। लेकिन मैं, प्लीज। ठीक है, वो मुस्कुरा दी। मुकाबिल ने उन्हें कोई मौका दिए बगैर अपनी बात मनवा ली थी कि अलीना आज से उनकी हुई। वो भी सना थी, अपना काम पूरा ना करती, ऐसा हो सकता है क्या?
वो क्या नाम था? हाँ, छोटा पैकेट भरा धमाका। पूरे 2 घंटे ख्वारी के बाद वो दोनों कॉरिडोर में रुककर सांस बहाल करने लगे। अरकम कहीं भी नहीं मिली। यार कहाँ जा सकती है आखिर? पूरी यूनी छान मारी है। नहीं अरकम, पूरी यूनी नहीं, लाइब्रेरी नहीं देखी। चल भाग, वहीं होगी। वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगे, तभी सीढ़ियों पर अरकम सुबहान से टकराया। उसकी हालत देखकर सुबहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ अरकम, सब खैरियत? नहीं यार, सुबह से सना को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही। क्या पता घर चली गई हो। वो अकेली नहीं जाएगी, चाहे तूफान क्यों ना आ जाए, वकास ने जवाब दिया। चलो हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। आखिर कहाँ गई दबंग सना? असद ने बोला तो दबंग कहने पर वकास ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो तीनों बाहर आ गए। अभी वो खड़े सोच ही रहे थे कि अरकम सर पर हाथ रखकर सीढ़ी पर बैठ गया। उसे अफसोस हो रहा था वो क्यों बात नहीं कर रहा था उससे। प्लीज सन, मिल जा यार, वकास ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। सुबहान सर पर हाथ रखकर मुड़ा ही था कि सामने से सना आती दिखाई दी। सना, वो बेइख्तियार बोला तो सब ने मुड़कर देखा। सब उसकी तरफ बढ़े सवाए अरकम के। अलीना जो सतून के साथ टेक लगाकर खड़ी थी, उसने अरकम को देखा। अरकम, उसने आहिस्ता से बुलाया, लेकिन वो सर नीचे झुकाए बैठा रहा। सना कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है सब कितना परेशान हो रहे थे। वकास गुस्से से बोलने लगा। मुझे काम से जाना था, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। उसकी नज़र अरकम पर थी। उसे अंदाजा था कि सब परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो किसी को बताकर नहीं जा सकती थी। वो सब चलते अरकम के पास ही गए। उसने अरकम को देखा, फिर साथ खड़ी अलीना को जो उसे ही देख रही थी। फिर हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ते हुए थूक निगला और दिल में दुआ की, अल्लाह जी, बारूद के ढेर में जा रही हूँ, ब्लास्ट होने से बचा लीजिएगा। अरकम को मनाना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने मुड़कर वकास को देखा, जिसने आंखों से उसे इशारा किया। फिर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बैग से चॉकलेट निकाली। कम्मू, ये ले चॉकलेट। अरकम ने उसका हाथ झटका, जिससे चॉकलेट गिर गई। सना ने डरते हुए फौरन कान पकड़े। सॉरी ना कम्मू, लेकिन अरकम उसको देखे बगैर खड़ा हो गया और वकास की तरफ मुड़ा। चल वकास। अरे कहाँ चल? मैं कैसे जाऊंगी यार? सना ने उसे देखते हुए सवाल किया, जो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। अलीना, सुबहान, असद और वकास साइड पर खड़े थे। क्यों, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो ना? सना यजदान अहमद, अपने फैसले खुद से करने आ गए हैं ना, तो अपने घर भी खुद से आ जाइएगा। चलो वकास। वो गाड़ी की चाबी जेब से निकालता मुड़ा। एक मिनट, मैंने कौन सा फैसला खुद से कर लिया? हाँ, वो उसकी तरफ बढ़ी। देखो सना बीबी, अपना रास्ता नापो, उसने हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा। हाय क्या करूं वकास, जब ये सना बीबी कहता है तो मत पूछो, कैसी मोहतरमा वाली फीलिंग आती है। वो एक्टिंग करते हुए बोली। शट अप, अरकम धारा तो एकदम वो चुप हुई। अलीना भी एकदम सहम गई। बाकी तीनों नफूस भी खामोश हो गए। आज से पहले अरकम को किसी ने जोर से बोलते नहीं देखा था। अरकम वकास की तरफ मुड़ा और बोला, पूछो इससे, कहाँ थी ये, पूछो, उसने वकास से कहा और वो भी उसी की टोन में आ गया। सना कहाँ थी तुम? जवाब दो, मुंह क्यों बंद है अब? वकास उसको देखकर भरम से बोला। इन चारों की दबी दबी हंसी की आवाज पर उसने मुड़कर सना को देखा, जो इशारे से कह रही थी कि कैसे बोलूं, तुमने ही कहा है, चुप हो जाओ। वो गुस्से से ही उसकी तरफ बढ़ा। यार अरकम, जाने देना, बच्ची है, माफ कर दो। असद ने सना की तरफदारी करते हुए कहा। इसे तो बच्ची कह रहे हो? असद, क्या इसको अंदाजा भी है मैं इन 2 घंटों में कितना ख्वार हुआ हूँ, कितनी दुआएं की हैं, इसे कुछ हुआ ना हो। कभी यहाँ भाग रहा हूँ, कभी वहां भाग रहा हूँ। एहसास हुआ इसको? इसे बस अपने थ्रिल पूरे करने होते हैं, अगला मरता मर जाए, इसे परवाह नहीं। वो बोले जा रहा था और सना सर झुकाए खड़ी थी। सुबहान ने गौर से उसकी तरफ देखा। वो बेआवाज रो रही थी। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ा। सना, तुम दिल पर मत लो, अरकम परेशान हो गया था, इसलिए बस थोड़ा सा गुस्सा है, तुम रो मत।
ये लो पानी पियो। वो उसके आंसू देखकर बेचैन हो गया था। अरकम ने सुबहान को देखा, फिर उसके पास आकर बोला, रोना बंद करो। वो प्यार से बोला, तुमने मुझे डांटा है, रोना तो आएगा ही ना। सना ने उसे नरम पड़ता देखकर नरूठेपन से कहा, प्लीज यार मेरे सामने ना रोया करो। अरकम उसको देखते हुए बोला, क्यों? घूर कर बोला गया, बस ना रोया करो ना। अरकम वापस अपने मूड में आ गया। नहीं बताओ क्यों ना रो मैं। वो चारों उनके करीब आ गए। अलीना बज़ाहिर तो वहाँ सही खड़ी थी, लेकिन उसके दिल की कैफियत का अंदाज़ा वहाँ खड़ा कोई शख्स नहीं लगा सकता था, और सुबहान की हालत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। बस मैंने कहा ना मत रोया करो। वो अभी तक सीरियस नज़र आ रहा था। क्यों, तुम्हें दुख होता है? उसने नॉर्मल होते हुए पानी की बोतल खोलकर घूंट पिया। नहीं। अरकम ने रुख मोड़े कहा, तो फिर? उसने फिर पूछा, तो अरकम उसकी तरफ पूरा घूमते हुए बोला, जब तुम ऐसे बैं बैं करके रोती हो तो मेरी हंसी निकल जाती है। हा हा हा। और पता है, इससे पहले वो कुछ और बोलता, ठंडा पानी अरकम के 14 तबक रोशन कर गया। सबने हैरत से अरकम को देखा, जो पूरा भीग गया था। छा गई दबंग सना। हा हा हा। असद हंसते हुए बोला। अरकम ने घूर कर असद को देखा, फिर सना को। सब इतना अचानक हुआ कि अरकम शॉक्ड रह गया। अब ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है। मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो, अंडरस्टैंड? वो एक अदा से कहती नाक से मक्खी उड़ाती हुई जाने के लिए मुड़ गई। सुबहान मुस्कुराहट दबाए उसे जाता देख रहा था। चल अरकम। वकास ने हंसते हुए उसका बैग उठाया। कभी जो ये मेरी थोड़ी सी इज्जत कर ले। वो सर झटक कर बाहर की जानिब बढ़ गया।